عمر بیل۔ ذوالقرنین سے ہونے والی علیزہ کی یہ پہلی ملاقات تھی، اور پہلی ملاقات آخری ثابت نہیں ہوئی۔ کوشش کے باوجود بھی اس رات کنسرٹ سے گھر واپس آنے کے بعد علیزہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پائی۔ وہ واقعی اتنا ڈیشنگ تھا کہ کسی بھی لڑکی کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہوتا، اور علیزہ جس عمر سے گزر رہی تھی، اس عمر میں صنف مخالف میں اس طرح پیدا ہو جانے والی دلچسپی بڑی طوفانی رفتار سے بڑھتی ہے۔ اگلے چند دن بعد ایک دن شیلا نے اسے فون نمبر دیا تھا۔ یہ ذوالقرنین کا فون نمبر ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، یا پھر تم اگر کہو تو وہ خود تم کو کال کر لے۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں بات کرنا چاہتا ہے؟ علیزہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ دوستی کرنا چاہتا ہے تم سے۔ اس نے فاروق کا دماغ کھا لیا ہے اس دن سے کہ وہ تم سے اس کا رابطہ کروائے۔ فاروق نے مجھ سے کہا، اب میں تمہیں اس کا فون نمبر دے رہی ہوں۔ کہیں تم نے اس کو میرا فون نمبر تو نہیں دیا؟ علیزہ ایک دم خائف ہو گئی۔ میں نے تو نہیں، مگر فاروق نے دے دیا ہے۔ اب اگر تم اسے فون نہیں کرتی تو پھر یقیناً وہ تمہیں فون کرے گا۔ علیزہ کا جیسے سانس رک گیا۔ او گاڈ، اگر فون نانو نے ریسیو کر لیا تو؟ شیلا، تم اسے منع کر دو کہ مجھے کبھی فون مت کرے۔ تو پھر بہتر ہے کہ تم خود اس سے بات کر لو، اسے فون کر لو۔ شیلا نے اس کے سامنے جیسے ایک تجویز رکھی تھی۔ مگر میں اس سے فون پر کیا کہوں؟ نہیں، میں اسے کال نہیں کروں گی۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس کا انکار بہت دیر تک نہیں چلا۔ دوسرے دن لاشعوری طور پر اسے فون کر بیٹھی تھی، اور فون کالز کا یہ سلسلہ پھر بڑھتا گیا۔ ذوالقرنین میڈیکل کالج میں فاروق کا کلاس فیلو تھا، اور وہ دونوں 3rd ایئر میں تھے، اور نہ صرف فاروق بلکہ شیلا کی بھی ذوالقرنین کے بارے میں اچھی رائے تھی۔ عمر ان دنوں اسلام آباد میں تھا، اور اس کے اور علیزہ کے درمیان ہمدردی اور انسیت کا جو ایک تعلق شروع ہوا تھا، وہ یکدم جیسے غائب ہو گیا تھا۔ عمر خود اسے کبھی کال نہیں کرتا تھا۔ نانو یا نانا ہی اسے کال کیا کرتے تھے، اور علیزہ کو کبھی اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ نہ ہی عمر نے کبھی علیزہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف علیزہ کے لیے ان دنوں ذوالقرنین سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں رہی تھی۔ وہ شیلا کو کال کرنے کے بہانے ذوالقرنین کو کال کرتی اور بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہتی۔ اس کے اندر یکدم بہت سی تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی، خود پر بہت زیادہ توجہ دینے لگی تھی، کرسٹی کے ساتھ بھی پہلے سے کم وقت گزارنے لگی تھی۔ نانو میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ خوش تھی کہ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ رہی ہے جس میں وہ پچھلے کچھ عرصے سے تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب وہ اپنی اسٹڈیز پر بھی پہلے کی طرح توجہ دینے لگے گی۔ ذوالقرنین میں علیزہ کو کیا چیز اچھی لگی تھی، علیزہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کے لک سے زیادہ متاثر ہوئی تھی، یا اس کے سنگر ہونے سے، یا پھر علیزہ میں لی جانے والی دلچسپی سے۔ اسے کچھ بھی ٹھیک انداز سے پتہ نہیں تھا، مگر وہ صرف اس بات سے خوش تھی کہ وہ یکدم کسی کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی۔ ذوالقرنین اس کی تعریفیں کرتا تھا، اور علیزہ کے لیے ان دنوں عمر کی عدم موجودگی میں شاید اسی چیز کی ضرورت تھی۔ وہ لئیک انکل کے ساتھ شام کو جاگنگ کے لیے پارک میں آیا تھا۔ جاگنگ ٹریک پر دوڑتے ہوئے ہر دوسرے قدم میں ان کے ساتھ کام کرنے والا کوئی نہ کوئی لئیک یا ان کا کوئی کولیگ یا شناسا انہیں مل رہا تھا۔ وہ جاگنگ کرتے ہوئے سلام دعا کا تبادلہ کرتے اور رکے بغیر آگے بڑھ جاتے۔ میں نے جہانگیر سے کہا تھا تمہیں فارن سروس کے بجائے پولیس سروس میں آنے دے، مگر وہ میری بات ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ جاگنگ ٹریک پر اس کے ساتھ بھاگتے بھاگتے وہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ تمہارا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ کسی میں بھی نہیں، اس کا دل چاہا وہ کہہ دے۔ فارن سروس ہی ٹھیک ہے، اس نے ساتھ بھاگتے ہوئے کہا۔ فارن سروس ٹھیک نہیں ہے، اسکوپ نہیں ہے اس کا تو۔ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ آتے ہی سیاسی بنیادوں پر اپائنٹمنٹ کر دیتی ہے۔ 4-6 جو اچھے ملک ہیں وہاں فارن سروس کے کسی بندے کو وہ لگاتے ہی نہیں۔ جو سیاستدان الیکشن ہار جاتے ہیں مگر پارٹی کو اچھا خاصا روپیہ دیتے رہتے ہیں، اور انہیں کو اٹھا کر ان ملکوں میں بھیج دیتی ہے۔ باقی جو ملک رہ جاتے ہیں وہاں صرف کام ہی کیا جا سکتا ہے، عیش کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور کام اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ مشن کے پاس فنڈز ہی نہیں ہوتے۔ جو روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے اس سے وہ مشکل مشن اپنے اخراجات ہی پورے کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں فارن سروس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہتے جا رہے تھے۔ پوسٹنگ میرا کنسرن نہیں ہے،
पापा करवा लेंगे। जहांगीर करवा तो लेगा, मगर बात सिर्फ एक पोस्टिंग की होती तो क्या ही बात थी। मुसलसल अच्छी पोस्टिंग मिलती रहें तब जाकर कुछ फ़ायदा होता है। और जहांगीर को तो खुद इस बार बहुत प्रॉब्लम हुआ है। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पोस्ट बचाई है। फॉरेन मिनिस्टर अपने भाई को उसकी जगह लाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि लाने में कामयाब हो गए थे। वो तो जिस जगह काम कर रहा था वहाँ जब्बार काम आ गया। उसके फादर इन लॉ ने मिनिस्टर के भाई की पोस्टिंग नहीं होने दी। उन्होंने उमर को जहांगीर के एक और दोस्त के बारे में बताया। उमर ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। फिर जहांगीर की इस अचानक शादी की वजह से भी मसला हुआ। एम्बेसी में मौजूद किसी एजेंसी के आदमी ने जहांगीर की शादी से पहले रशिया के हवाले से कोई खुफिया रिपोर्ट भेज दी। फॉरेन मिनिस्टर तो पहले ही ताक में बैठे थे। उन्होंने फौरन शोर शराबा कर दिया। प्रेस तक ये खबर लाने वाले भी वही थे। उनका ख्याल था कि मामला प्रेस तक आएगा तो खुद ही मामला खूब उछलेगा और फिर वज़ीर-ए-आज़म उसे हटाने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर जब्बार बहुत काम आया। उसने मिनिस्टर की एक नहीं चलने दी। लेकिन आखिर कब तक? अब मिनिस्टर मुसलसल ताक में है। चोट खाया हुआ सांप बना बैठा है। फॉरेन सर्विस में इस तरह की सिचुएशन है तो पुलिस सर्विस में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि वहाँ सियासी मुदाखलत और भी ज़्यादा है। लईक अंकल के साथ भागते हुए उसने तबसरा किया, अच्छी पोस्टिंग तो वहाँ भी मुश्किल से ही मिलेगी। हाँ, ये प्रॉब्लम्स तो वहाँ भी हैं, मगर वहाँ बंदा जिस भी शहर में पोस्टेड हो वहाँ की इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास से कॉन्टैक्ट्स बना सकता है, अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकता है। बंदे के पास पावर और अथॉरिटी हो तो समझो सारी दुनिया अपनी है। वो उसे गुड़ सिखा रहे थे। तुमने इंतखाब में दूसरे नंबर पर कौन सा डिपार्टमेंट दिया है? डीएमजी। और पुलिस सर्विस को किस नंबर पर लिया है? तीसरे नंबर पर। बेहतर होता तुम उसे ही पहले नंबर पर रखते। बहरहाल अभी भी वक्त है, तुम सोच लो। मैं जहांगीर से दोबारा बात करूँगा, सब कुछ बदला जा सकता है। उन्होंने उसके सामने जैसे नया रास्ता खोल दिया था। नहीं अंकल, मैं फ़ॉरेन सर्विस से ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे किसी दूसरे ग्रुप में दिलचस्पी नहीं है। उमर ने इनकार कर दिया। फिर भी एक बार दोबारा सोच लो। नहीं, जो भी पापा ने तय किया है वो ठीक है। लेकिन अंकल जॉगिंग करते हुए खामोश हो गए। लेकिन अंकल जहांगीर माज से अपनी दोस्ती पर बड़ा फख्र करते थे और वो इस बात पर भी खासे नाज़ा थे कि जहांगीर माज उन पर मुकम्मल तौर पर एतबार करता था। उमर से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने कई बार इस बात का इजहार किया था और वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। वो उनकी खुशफहमी को बरकरार रखना चाहता था, वरना वो जानता था कि जहांगीर माज जैसा शख्स जो अपने साए पर भी एतमाद नहीं करता, वो एक कज़न पर कैसे एतमाद कर सकता है। बहुत से दूसरे लोगों की तरह लेइक अंकल भी उनके हाथ की एक कठपुतली की तरह थे, जिन्हें वो बड़ी होशियारी से इस्तेमाल कर रहे थे। उमर सिर्फ इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि लेइक अंकल इस बात को जानते थे या नहीं। उमर ने लेइक अंकल के बारे में अपने बाप के मुंह से बहुत बार तमस्खुराना जुमले सुने थे और लेइक अंकल वाहिद नहीं थे। वो अपने हर दोस्त और मिलने वाले के बारे में कुछ न कुछ कहते रहते थे। उमर को हैरानी होती कि उसके बावजूद उनको दोस्तों की लंबी चौड़ी तादाद में कोई कमी आई, ना ही उन्हें कभी अपने दोस्त से नुकसान पहुंचा था। उसने जहांगीर माज को सिर्फ अपने फ्रेंड्स और कज़न्स का ही नहीं, बल्कि अपने भाइयों के नाम और पोजीशन का भी बुरी तरह इस्तेमाल करते देखा था। और अब जब वो अपने बाप के किसी भी दोस्त से मिलता तो उसे हमेशा उन पर तरस आता। लेइक अंकल भी उन्हीं में से एक थे। वो उमर समरीन आंटी ने दोबारा कॉल की है। मैंने उन्हें बता दिया कि तुम घर पर नहीं हो। वो कह रही थी कि जब तुम वापस हो तो मैं तुमसे कहूँ कि तुम उन्हें कॉल कर लो। वो इस वक्त क्लब से वापस आया था। जब लाउंज में दाखिल होते ही उसे देखकर शांता ने इतला दी। उमर यकदम संजीदा हो गया था। उन्होंने बस यही पे काम छोड़ा है? हाँ, बस यही कहा था। उन्होंने तुम्हारे मोबाइल पर भी कॉल की थी, मगर तुमने अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ था। शांता ने बात जारी रखते हुए कहा। उमर मज़ीद कुछ पूछने के बजाय सीधा अपने कमरे में आ गया। मोबाइल ऑन करके साइड टेबल पर रखने के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। आध घंटे के बाद जब वो नहाने के बाद बाहर निकला तो उसके मोबाइल की बीप सुनाई दे रही थी। उसने कुछ ठिठक कर तज़-बज़ब के आलम में मोबाइल उठाया था। कॉल करने वाले का नंबर देखकर उसने होंठ भूंज लिए। कुछ देर सोचने के बाद एक गहरा सांस लेकर उसने कॉल रिसीव किया। हेलो उमर,
मैं समरीन बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से उसे अपने बाप की दूसरी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फाइन। मैं आज सारा दिन बार बार तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। हाँ, मैं कुछ मसरूफ़ था। आपको कोई ज़रूरी काम था? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर समरीन की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें जहांगीर की शादी का तो पता चल ही गया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, उसने मुख्तसरन कहा। तुम ये भी अच्छी तरह जानते होगे कि वो लड़की जहांगीर की आधी उम्र से भी कम है। फिर जिस तरह की शोहरत वो रखती है, मैं नहीं जानती जहांगीर को क्या हो गया है, वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है। समरीन के लहजे से परेशानी झलक रही थी। उमर खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। मैं और बच्चे जहांगीर की इस हरकत से कितने डिस्टर्ब हैं, उसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ, उसने उनकी बात काटते हुए कहा। तुम जहांगीर से बात करो। समरीन का लहजा इस बार कुछ धीमा था। क्या बात करूँ? दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही कि वो इस लड़की को डाइवोर्स दे दे। आपका क्या ख्याल है? मेरे कहने पर पापा उसे डाइवोर्स दे देंगे? उसने जवाबन उससे पूछा। तुम उसके सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारी बात बहुत अहमियत रखती है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो गलत सोच रही हैं। खुशकिस्मती से मैं उनका सबसे बड़ा बेटा तो हूँ, लेकिन मेरी बात उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उमर, तुम उसे मजबूर कर सकते हो। नहीं, मैं उन्हें मजबूर कर सकता हूँ, ना ही करना चाहता हूँ, उसने दो टोक अंदाज में कहा। उमर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इस बार समरीन का लहजा मिन्नत भरा था। मैं उन पर जितना दबाव डाल सकता था डाल चुका हूँ। उनसे इस मौजू पर मेरी बात हो चुकी है और ये गुफ्तगू कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रही, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। जहांगीर हमें इस्लामाबाद वाले घर में शिफ्ट करना चाहता है। मैं जानता हूँ, मगर मैं और बच्चे ऐसा नहीं चाहते। जहांगीर अपनी इस नई बीवी को क्यों नहीं यहाँ शिफ्ट करता? मैं और बच्चे उसके साथ रहना चाहते हैं। वो इस तरह हमें उठाकर कैसे फेंक सकता है? तुम कम से कम उससे ये तो कह ही सकते हो कि वो हमें अमेरिका में अपने पास ही रहने दे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे, ना मानेंगे। वैसे भी ये आप दोनों का ज़ाती मामला है। बेहतर है आप उसे खुद हल करें, मुझे दरमियान में मत लाएं, उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। जहांगीर की शादी सिर्फ मेरा या मेरे बच्चों का ज़ाती मामला नहीं है। क्या तुम उससे मुतासिर नहीं हुए? क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई कि इस उम्र में जहांगीर ने इस तरह की हरकत की? मैं इस तकलीफ़ से बहुत पहले गुजर चुका हूँ। बाप की सिर्फ दूसरी शादी तकलीफ दे होती है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी से कुछ नहीं होता। वो सब कुछ फिर रूटीन लगती है। उसके लहजे की काट ने समरीन को चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया। मैंने जहांगीर से शादी तुम्हारी माँ की डाइवोर्स के बाद की थी, मगर उस डाइवोर्स की सबब आप ही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। उमर, जहांगीर और ज़ारा के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर तुम्हारी माँ ने अपनी मर्ज़ी से। उमर ने नागवारी से उसकी वजाहत को काट दिया। मैं माजी में नहीं जाना चाहता कि किसने क्या किसकी वजह से किया और क्यों। कम अज़ कम अब मुझे इस बहस से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने हाथ का हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। उमर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो सकता है। बहरहाल ये आप दोनों का ज़ाती मामला है और बेहतर है आप उसे खुद ही हल करें। जो कुछ आप मेरे ज़रिए पापा से कहलवाना चाहते हैं वो खुद कह दें, या फिर वलीद से कहें कि वो पापा से बात करे। हो सकता है मेरे बजाय वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सब कुछ पापा तक पहुंचा दे। दूसरी तरफ से फ़ोन यकदम बंद कर दिया गया था। समरीन के साथ उसके ताल्लुकात में हमेशा एक तल्फ रहा था। समरीन ने ये अजनबियत दूर करने के लिए पहल की थी, न ही उमर ने उसकी कोशिश की थी। उमर और उनके दरमियान बड़ी सरसरी और रस्मी सी गुफ्तगू होती थी। उमर को हैरानी हुई थी कि समरीन ने इस तरह उससे मदद लेने की कोशिश क्यों की थी। उसके दिल में समरीन के खिलाफ किसी किस्म का कोई बोझ नहीं था, न ही उसने कभी समरीन को अपनी माँ और बाप के दरमियान होने वाली अलहदगी का जिम्मेदार समझा था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने समरीन के लिए कभी बहुत अच्छे एहसास भी नहीं रखे थे और उसमें बड़ा हाथ खुद समरीन का ही था। तो अलीज़ा बीबी वापस आ चुकी हैं, उमर ने रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम में आते ही अलीज़ा को देखकर खुशगवार अंदाज में कहा था। अलीज़ा दोपहर को वापस पहुंच गई थी और इस वक्त घर में उमर नहीं था। वो रात को ही वापस आया था और वापस आने के बाद इन दोनों की मुलाकात डाइनिंग रूम में हुई थी। तो क्या सीखा, कुछ सीखा, समझा और क्या देखा आपने? वो अब
कुर्सी खींच कर बैठते हुए कह रहा था। बहुत कुछ, अलीज़ा ने मुस्कुराकर कहा। इस बहुत कुछ के बारे में हमें बताना पसंद करेंगी? इस वक्त से ये मेरे कान खा रही है, अब तुम्हारे खाएगी। नाना ने मुस्कुराते हुए उमर को जैसे खबरदार किया था। तो अब क्या ख्याल है एनजीओज़ के बारे में? उमर ने गिलास में पानी डालते हुए पूछा। आपने एनजीओज़ के बारे में जो कुछ कहा था, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। उमर ने पानी का घूंट लेते हुए गहरी नज़रों से उसे देखा। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। वेरी गुड, इसका मतलब है आपने वाकई अपनी सेंस ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे किस बात से यकीन नहीं करती तुम? उसने पूछा। आपकी सब बातों से, उसने अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए कहा। सब बातों से? तुम्हारा मतलब है मैंने तुमसे झूठ बोला है? लीज़ा यकदम गड़बड़ा गई। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर आप क्या फरमा रही हैं? अलीज़ा कुछ देर खामोशी से जैसे अपने लफ्ज़ों को तरतीब देती रही। फिर उसने कहा, आपने एनजीओज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, वो ठीक नहीं थी। एनजीओज़ ने इस इलाके में बहुत काम किया है। तुमने उनके स्कूल वगैरह देखे होंगे, इसलिए। अलीज़ा ने उमर की बात काट दी। नहीं, बात सिर्फ स्कूल नहीं है। मैंने सिर्फ स्कूल्स ही नहीं देखे, वहाँ और भी कुछ देखा है। मैंने लोगों से बातचीत की है। एक शख्स झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, मगर हर शख्स तो नहीं। वहाँ हर शख्स यही कह रहा है कि इन एनजीओज़ की वजह से इस इलाके में बहुत तरक्की हुई है। इस चीज़ पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए, जो आंखों देखा हो न कानों सुना। उमर ने इत्मीनान से उसकी बात रोक दी। और उनके बारे में क्या कहते हैं जो आंखों देखा और कानों सुना हो? अलीज़ा ने कुछ उखड़े लहजे में कहा। फिर उस पर गौर करना चाहिए कि जो कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है, क्या वो वाकई ठीक है? उमर संजीदा हो गया था। मैंने यही किया है। उमर ने सर उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। और तुम्हारी इस गौर खोज ने तुम्हें ये बताया है कि एनजीओज़ और वो आसमानी मोजज़ा है जो इस मुल्क में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अलीज़ा को उसके लहजे में छुपा तमस्खुर बुरा लगा था। मैंने ये नहीं कहा कि एनजीओज़ कोई आसमानी मोजज़ा हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस इलाके के लोग एनजीओज़ पर एतबार करते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ये लोग उनके इलाके में तब्दीलियाँ ला रहे हैं और उनके काम कर रहे हैं। किन लोगों की बात कर रही हो तुम? उसका लहजा यकदम सर्द हो गया था। इन लोगों की जिनके पास तालीम और शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सहूलियात और जहनीत के एतबार से इस मुल्क की सबसे पसमानदा क्लास जो देहात में बसती है, जिसकी सोच उलामाना थी है और रहेगी, जिन पर पहले नवाब और महाराजा हुकूमत करते थे, फिर जागीरदार और रईस और अब एनजीओज़। और तुम्हारा ख्याल है कि सब कुछ बदल गया है? कल तक गालियाँ और धक्कों को मेहरबानी समझकर मुस्कुराने वाले लोग इतने बाशऊर हो गए हैं कि उनमें अच्छे और बुरे की पहचान आ गई है। इन लोगों में शऊर आ रहा है। वहाँ तालीम का रेशो भी ज़्यादा हो रहा है। अलीज़ा ने धीमे लहजे में कहा। तालीम और शऊर का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता अलीज़ा बीबी। अगर ऐसा होता तो आज तक किसी तालीम याफ्ता शख्स ने कोई जुर्म न किया होता। उसका लहजा अब भी खुरदरा था। मगर वहाँ के लोग वाकई बदल रहे हैं। अगर एनजीओज़ ये दावा करती हैं कि उन्होंने वहाँ इस्लाहात की हैं तो वो गलत नहीं कहती। वहाँ लोग वाकई एक बदले हुए माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ के लोग एनजीओज़ के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। अलीज़ा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उमर इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। वहाँ के लोग तो गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के बारे में भी बहुत अच्छी राय रखते हैं। फिर क्या तुम ये सोचना शुरू कर दोगी कि ये भी ठीक होता है? अलीज़ा कुछ देर बात नहीं कर सकी। बेहतर होता तुम एनजीओ से कहकर वहाँ के थानों का रिकॉर्ड भी चेक कर लेती। गुजरावाला, सियालकोट, डस्का और इर्द गिर्द का इलाका ख़ानदानी दुश्मनियों के लिए भी खासा मशहूर है और ये नस्ल दर नस्ल चली आती हैं, तब तक जब तक मुखालिफ का पूरा ख़ानदान ना ख़त्म हो जाए। और ये लोग एक दो कत्ल नहीं करते, ये 6-6, 7-7 लोगों को इकट्ठा मरवा देते हैं। और कोई महीना ऐसा नहीं होता जब इस इलाके में ऐसा कोई वाक़या ना हो। अब बकौल आपके, अगर एनजीओज़ ने वाकई इन लोगों की सोच में तब्दीली कर दी है तो सबसे पहले तो इन लोगों के रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। वो अब सलाद खा रहा था। अलीज़ा उसकी बातों पर खफ्त महसूस कर रही थी। जो लोग एक गाय भैंस चुराए जाने पर मुखालिफ के घर की औरत उठा लेते हैं, रात को खेतों की रखवाली करने वाले कुत्ते के मारे जाने पर मुखालिफ की तैयार फसलों को आग लगा देते हैं,
खेत का पानी रोके जाने पर किसी को भी कत्ल करना जायज़ समझते हैं। ऐसे लोगों की एनजीओज़ के बारे में अच्छी राय किस हद तक काबिल एतबार हो सकती है या उसे कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये काफ़ी काबिल गौर है। हर तब्दीली लाने में वक्त लगता है, एनजीओज़ को भी वक्त लगेगा, मगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अलीज़ा की राय अभी भी तब्दील नहीं हुई थी और ऐसा कभी नहीं होगा। कम से कम एनजीओज़ ये काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो ये काम करने नहीं आई हैं। उमर का लहजा बहुत मुस्तहकम था। हो सकता है एनजीओज़ में कुछ लोग ख़राब हों या कह लें कि चंद एनजीओज़ ख़राब हों, मगर सब एनजीओज़ तो इस तरह की नहीं होती। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एनजीओज़ भी नहीं हो सकती। मुझे हैरत होती है कि हम नहीं परफेक्ट देखना क्यों चाहते हैं। वो इस बार कुछ ज़िद होकर बोली, इसलिए कि वो तब्दीली लाने के दावे कर रही हैं। उमर का इत्मीनान बरकरार रहा था। आप एनजीओज़ के इतना खिलाफ क्यों हैं? इस पर अलीज़ा ने कुछ नाराज़गी से उससे पूछा। तुमसे किसने कहा कि मैं एनजीओज़ के खिलाफ हूँ? उमर ने उतनी ही बेसाख्तगी और सुकून से कहा। अलीज़ा हैरान हुई। क्या मतलब? ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, ये क्या है? हक़ाइक़। वो अभी इस तरह मुस्कुरा रहा था। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर यही हक़ाइक़ हैं, तो ये सब कुछ जानने के बाद आप एनजीओज़ के खिलाफ नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलीज़ा मुँह खोले बेयकीनी से उसे देखती रही। मेज़ के दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स को समझना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है आप एनजीओज़ को पसंद करते हैं? वो उलझ गई। मैंने ये भी नहीं कहा। ना आप एनजीओज़ को पसंद करते हैं, ना आप उन्हें नापसंद करते हैं, मगर आप उनके बारे में अच्छी राय भी नहीं रखते। ये क्या तज़ाद है? उमर ने उसके लहजे में झलकने वाली खफगी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी प्लेट में एक कबाब निकाल लिया। है तो, उसने कमाल बेनियाजी से कबाब खाते हुए कहा। अलीज़ा एक बार फिर उसे देखने लगी। आप पुलिस सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपके इलाके में कोई एनजीओ काम कर रही होगी, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और अगर इस एनजीओ ने इस इलाके में पुलिस की तरफ से होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं इस इलाके से उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा, उसने बेतासुर चेहरे और आवाज़ के साथ कहा और पानी का गिलास उठा लिया। अलीज़ा बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। इसके बावजूद वो एक सही काम कर रहे होंगे। अलीज़ा, इस कैक्टस को देखो। उमर ने पानी का गिलास रखते हुए डाइनिंग टेबल से कुछ फासले पर एक कोने में पड़े हुए कैक्टस की तरफ इशारा किया। फ़र्ज़ करो मैं बाज़ार में एक पौधा खरीदने जाता हूँ और वहाँ सिर्फ यही एक पौधा है और कोई पौधा नहीं है। मैं ना उसके नाम को जानता हूँ, ना मुझे ये पता है कि ये फूलदार है या नहीं, यह कितना अरसा चल सकता है, मगर मुझे एक पौधे की ज़रूरत है, तो मैं इसे ख़रीद लूँगा, फिर उसे यहाँ डाइनिंग रूम में रख दूँगा, ये जानने के बावजूद कि इस पर कांटे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक उसके कांटे मेरे लिए किसी तकलीफ़ का बायस नहीं बनते। जिस दिन उसके कांटों से किसी को ज़ख्म लगा या किसी के कपड़े फटे, उस दिन इस कैक्टस को यहाँ से हटा दिया जाएगा। मैं हूँ या तुम, हर एक यही करेगा। कोई भी दोबारा ज़ख्म लगने या कपड़े फटने का इंतज़ार नहीं करेगा। वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था।